Event online classes, class 10th, subject science, chapter 9, part 2. How do detritus get expressed? यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? How does the mechanism of heredity work? Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. A section of DNA that provides information for the proteins is called the gene for the protein. How do protein control the characteristic that we are discussing here? Let's take the example of tallness as a characteristic. We know that plants have hormones that can trigger growth. Plants' height can thus depend on the amount of a particular plant hormone. The amount of the plant hormones that made will depend on the efficiency of the process for making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormones will be made and the plant will be tall. If the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, the amount of hormones will be less and the plants will be short. Thus, gene control characteristic of detritus. अब आनुवांशिकता कार्य की विधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसकी हम यह चर्चा करते हैं कि आइए पौधे की लंबाई की एक लक्षण का उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधे में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रित करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे की उपस्थिति में उसकी मात्रा में निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस उपक्रम का दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा वह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष वाली होगी। अतः बनने वाली हार्मोन की मात्रा भी कम होगी। यह पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. We have discussed this issue in the previous chapter. If both parents can help determine the detritus in the pregnancy, both parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each plant must have two sets of all genes, one inherited from each parent. For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान सतत के डीएनए में दोनों जनक के समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक सतत के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति सतत को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो सेट होंगे। प्रत्येक जनक में एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल्स टू copies that all other cells in the body have? If progeny plant inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. This is because the
two characteristics are and Y would then be linked to each other and cannot be independently inherited. This is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome. Thus, each cell will have two copies of each chromosome, one each from the male and female parents. Every germ cell will take one chromosome from each pair, and these might be of either maternal or paternal origin. When we germ cell combine, they will restore the normal numbers of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. Such a mechanism of inheritance explains the result of the Mendel experiments and is used by all sexually reproducing organisms. But a sexually reproducing organism also follows similar rules in inheritance. Can we work out how their inheritance might work? अब देखिए, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं, दो कॉपी होती है, फिर इनसे जनक कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि सतत पौधे को जनक पौधे के संपूर्ण जीनों में एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो डायग्राम 9.5 में दर्शाए प्रयोग सफल नहीं हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण R तथा Y सेट के एक दूसरे में संलग्न रहेंगे, स्वतंत्र रूप से आहिरत नहीं हो सकते हैं। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक DNA श्रृंखला के रूप में ना होकर DNA को अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक तथा मातृक के से गुणसूत्र से प्रत्येक जोड़े को केवल एक गुणसूत्र में एक जनन कोशिका में जाता है। जब दो युग्मों का संलयन है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है तथा सतत में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। यह स्पीशीज के DNA का स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति के इस क्रियाविधि से मेंडल का प्रयोग का परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव की वंशागति के इन्हें नियमों का पालन करते हैं। क्या आप में पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशागति किस प्रकार से होती है? सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। वी हैव डिस्कस्ड एन आइडिया दैट द टू सेक्सेस participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other from a number of reasons. How is the sex of a newborn individual determines that different species use very different strategies for this. Some rely entirely on environmental cues. Thus, in some animals like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the egg will be male or female. In other animals such as snail, individual can change sex, indicating that sex is not genetically determined. However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. In the other words, the gene inherited from our parents decide whether we will be boys or girls, but so far we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? अब इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर भिन्न होते हैं, जिससे कई प्रकार होते हैं। नवजात के लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीशीज के इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण
निषेचित अंडे युग्मक के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है तथा सतत नर होगी या मादा होगी जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन में इस बात का निर्णय करते हैं कि सतत लड़का होगा अथवा यह लड़की, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन सेट सतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pair. But one pair called the sex chromosome is not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosomes, both called X, but men have a mismatched pair in the which one is a normal sized X, while the other is a short one called Y. So women are double X, while men are XY. Now can we work out what the inheritance pattern of X and Y will be? इसका व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इसकी संख्या 22 जोड़े में होती है, परंतु यह एक युग्म जैसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े पर नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र की पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष जो नर होते हैं वह यह जोड़ा पूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरे गुणसूत्र छोटा होता है। इसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई के वंशानुगत पैटर्न पर पता कर सकते हैं? ऐसे figure 9.6 show half the children will be boys and half will be girls. All children will inherit of X chromosome from their mother regardless of whether they are boys or girls. Thus the sex of the children will be determined by what they inherited from their father. A child who inherited an X chromosome from her father will be girls, and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. जैसा कि डायग्राम 9.6 में दर्शाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़कियां हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं तथा बच्चों में लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करती है कि वह उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसके पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। एवोल्यूशन विकास। वी हैव नोट दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग reproduction both because of errors in DNA copying and as a result of sexual reproduction. Let us now look at some consequences of this tendency. विकास। अब हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है जो DNA की प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणाम का अध्ययन करते हैं। 9.3 एन इलस्ट्रेशन। एक दृष्टांत। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 12 red beetle. They live, let's assume, in some bushes with green leaves. Their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variation. Let's imagine also that crow eat these beetles. The more beetles the
crow eats. The fewer beetles are available to reproduce. Now let us think about some different situations that can develop in this beetle population. अब सोचिए कि 12 लाल भृंग मतलब 12 लाल बीटल्स का एक समूह है जो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उसकी सम्मिश्र लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती हैं तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितना भृंग खाएंगे उतना कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। डायग्राम 9.7 जो इन भृंगों की सम्मिश्र में विकास हो सकेंगे। In the first situations, a collaboration arises during reproduction so that there is one beetle that is a green in colors instead of red. This beetle, moreover, can pass the color on to its progeny so that all its progeny beetles are green. Crow cannot see green colored beetles on the green leaves of the bushes there and therefore cannot eat them. What happens then? The progeny of green beetles is not eaten. Will the progeny of red beetles continues to be eaten? As a result, there are more and more green beetles than red. One is the beetle population. प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है जिससे सम्मिश्र में लाल की बजाय एक हरा बीटल्स दिखाई देगा। जो ग्रीन बीटल्स एंड अथवा रंग अपनी संतान को वंशागत आहरित करता है जिसके कारण इसकी सारी संतति को रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा जब हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती रहती है। इन सेकेंड situations again a collaboration arises during reproduction, but now its result in the beetles that is blue in color instead of red. The beetles can also pass the color on to its progeny so that all its progeny beetles are blue. Crows can see blue colored beetles in the green leaves of the bushes as well as they can see red ones and therefore can eat them. What happens inherently in the populations as it expanded? There are few blue beetles, but most are red. But at this point, an elephant comes by and stomps on the bushes where the beetles live. This kills most of the beetles. We change the few beetles that have survived are mostly blue. The beetles population slowly expanded again, but now the beetles in the population are mostly blue. दूसरी परिस्थितियों में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग के लाल का स्थान पर नीला होता है। यह भृंग भी अपने रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती रहती है। कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों की पहचान कर उन्हें खा सकते हैं, परंतु प्रारंभ में यह क्या होता है, समष्टि के आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग होते हैं, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिससे वह भृंग रहते थे, जिसमें वह बहुत से भृंग मर जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं जिसकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसके अधिकतर भृंग नीले होते हैं। इट इज obvious that in both situations but started out as a rare variation come to be a common characteristic in the population. In other words, the frequency of an inherent
टाइटस changed over generation. Since gene control traits, we can say that the frequency of certain gene in a population changed over generation. This is the essence of the idea of evolution. दूसरी, यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी समय के अंतराल में वह एक समान लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों में नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समिष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों पर बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना के सारांश है। थैंक यू।